Hello, welcome back all of you. My name is Prachi Soni. I am from Gandhi Senior Secondary Public School, Shikohabad, Firozabad District, UP. So, we are here to study class 11th NCERT Geography, and we are currently studying Fundamentals of Physical Geography. The book is this one. So, in this book, we have already completed our chapter number 1, that is the geography as the discipline. So if you are coming here for the first time, I would request you to please go through the previous videos of the first chapter as well as the part 1 of second chapter, because we have already studied the part 1 of chapter number 2, that is the origin and evolution of Earth. In this chapter, in the previous class, we studied about the early theories of evolution of Earth, modern theories of formation of universe, and we studied about the Big Bang theory, which was a part of your modern theories. Today we would be talking about the star formations. So all of us have in our nursery classes have done or studied the rhyme twinkle twinkle little star how I wonder what you are. So how I wonder what you are में I would today हमें पता चल जाएगा कि actually what is a star, how it is formed and कब form हुआ, कैसे form हुआ, all these things we would be seeing today. With star we would also be seeing how planets formed, how our moon formed, how our solar system formed, everything we will be seeing today. So while talking about how planets formed, obviously how Earth formed would be covered. So while talking about the star formation, firstly I would like to tell you that there are certain terms in this chapter which are very much related to science. So firstly I would like to explain those terms, and then we would be coming back to the content which is written in the book. First, in the very first line of formation of stars, they have written that all the matter and energy was not evenly distributed. What is matter and what is energy? In the previous class, while we were studying about the Big Bang theory, we saw that there were some gases which accumulated, और जब वो इकट्ठी हो गई थी, जब वो एक साथ आ गई थी, तो there was enormous energy. और वो इतनी एनर्जी हो गई थी कि जब वो जो एक पर्टिकुलर बॉल थी वो उसको कैप्चर नहीं कर पा रही थी, तो एनर्जी की इट एक्सप्लोडेड एंड इट रिजल्टेड इनटू अ बिग बैंग, एंड द बिग बैंग फर्दर रिजल्टेड इनटू डिफरेंट मासेस ऑफ एरियाज, और फिर वो धीरे धीरे करके जो हमारा यूनिवर्स है, इट इज स्टिल एक्सपैंडिंग, इट विल एक्सपैंड फॉरएवर. तो दिस वाज अबाउट द यूनिवर्स. बट अभी स्टार्स क्या है, मैटर क्या होता है, कुछ भी मैटर, डस्ट पार्टिकल्स, gases, everything which is present in the universe is known as matter. इन सब चीज़ों के बीच में एनर्जी होती है. हाइड्रोजन को यूज करके हम न्यूक्लियर वेपन्स बना लेते हैं. सो द गैस हैज इनॉर्मस एनर्जी. हीलियम को यूज करते हैं. हर गैस का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होता है. ऑक्सीजन की वजह से योर कंबशन नहीं होता है. ऑल दीज गैसेज हैव सर्टेन क्वालिटीज ऑफ इट्स ओन, जो और ये सारी गैसेस यूनिवर्स में प्रेजेंट है, तो ये अपनी अपनी क्वालिटीज़ को रिफ्लेक्ट करती हैं, अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को रिफ्लेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्स में देयर इज सम और द अदर काइंड ऑफ चेंज. तो मैटर और एनर्जी दोनों हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है, बट अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ऐसा नहीं है कि हर जगह में ऑल ओवर द यूनिवर्स आपको सेम मैटर और सेम एनर्जी मिलेगा. कुछ जगह, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे एनर्जी का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है, कुछ जगह है जहाँ पे एनर्जी और मैटर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लो है. अब क्या होगा, जहाँ मैटर होगा और एनर्जी होगी वहाँ होगी ग्रेविटेशन. वहाँ क्या होती है, ग्रेविटेशन. फॉर एग्जांपल, अगर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपकी बहुत सारी मैटर और एनर्जी है, तो ये पॉइंट क्या करता है, ये ग्रेविटेशन फोर्स एक्सट्रैक्ट करता है. ग्रेविटेशन फोर्स निकालने का मतलब क्या है, अपने आसपास ग्रेविटेशन पुल जनरेट करता है, जिसमें ये आसपास का जो मैटर है उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टैंडिंग हेयर, आसपास कुछ छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, मेरे अंदर इतना इनफ मैटर है और इतनी इनफ एनर्जी है कि मैं ग्रेविटेशन जनरेट कर पाऊँ. तो मैं क्या करूँगी, मैं अपनी ग्रेविटेशनल पावर से, ग्रेविटेशनल फोर्स से आसपास जो 4 लोग खड़े हैं उनको अपनी तरफ पुल कर लूँगी, एंड देन हम जो सर्कल बन जाएगा वो एक बड़ा सर्कल हो जाएगा. और ऐसे करके धीरे धीरे जैसे मैं सर्कल बड़ा होता जाएगा, मेरा ग्रेविटेशन का इफेक्ट इंक्रीज होता जाएगा, मैं और ज़्यादा चीज़ें आसपास से अट्रैक्ट करती रहूँगी, और इट वुड बी अ बिगर पार्ट. तो
तो ग्रेविटेशन, हर चीज में ग्रेविटेशन होती है। अर्थ भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सट्रैक्ट करता है, सन में भी एक ग्रेविटेशन है जिसकी वजह से जो सारे प्लैनेट्स हैं वो उसके आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं। अर्थ में भी एक ग्रेविटेशनल पुल है जिसकी वजह से मून उसके आसपास रिवॉल्व कर रहा है। आप भी उड़कर कहीं नहीं चले जा रहे हो, यू आर स्टैंडिंग ऑन दी फ्लोर, मैं फ्लोर पे खड़ी हूँ, आप कहीं पे बैठे हो, आप उड़ क्यों नहीं रहे हो हवा में? बिकॉज ऑफ दी ग्रेविटेशनल फोर्स और पुल डन और फोर्स्ड अपॉन अस बाय दी अर्थ। तो इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस। नाउ these and it cause matter to get drawn। मैंने बताया कि ग्रेविटेशन के कारण जो मैटर होता है वो उसके आसपास खिंचा चला आता है। These form the basis for development of galaxies। अब क्या हुआ, जब मैंने 4 लोग में, मैं अकेली खड़ी थी, मैंने और आसपास के 4 लोगों को अपनी तरफ पुल कर लिया, तो इसकी वजह से क्या होगा, मेरा सर्कल अब और ज्यादा एक्सपैंड हो जाएगा। पहले आई वाज सिंगल, नाउ आई एम 10 पीपल, और मोर 10 पीपल, मोर 20 पीपल विल जॉइन मी। ऐसे करके धीरे धीरे हमारा जो सर्कल है वो एक्सपैंड होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और फिर ये जो सर्कल हो जाएगा इसको हम बोलते हैं गैलेक्सीज। इसको हम क्या बोलते हैं? गैलेक्सीज। एक गैलेक्सी जो होती है उसमें लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स होते हैं। एक गैलेक्सी में बहुत सारे न्यूमरस स्टार्स प्रेजेंट होते हैं। गैलेक्सीज जनरली बहुत वास्ट होती हैं, वास्ट मतलब बहुत बड़ी होती हैं, दूर दूर, डिस्टेंट, वास्ट इन डिस्टेंस का मतलब बहुत बड़ी, दूर एकदम फैली होती हैं। इनका जो डायामीटर है, अभी डायामीटर का सर्कल सबको पता है, सर्कल की शेप, सर्कल को आप हाफ में डिवाइड कर दोगे तो उसको हम, जो लाइन होती है उसको डायामीटर बोलते हैं। मतलब आप एक पॉइंट से दूसरे एंड पे अगर आपको सर्कल के जाना है, इक्वल मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है सर्कल के बीच में, उसको हम डायमीटर बोलते हैं। और ये जो गैलेक्सीज होती हैं इनका जो जनरली डायमीटर होता है वो 80,000 लाइट ईयर्स से लेकर 1,50,000 लाइट ईयर्स का अराउंड होता है। What is light year? We will be talking about in next few minutes. So ये गैलेक्सीज में लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स होते हैं। हमने वास्ट की बात कर ली, और इसमें इसका जो डायमीटर होता है इट इज वेरी ह्यूज। Next is जो galaxy starts to form by accumulation of hydrogen gas in the form of a very large cloud known as nebula। मतलब ये जो आपको बादल दिख रहा है, जो गैलेक्सी है वो गैलेक्सी, अभी गैलेक्सी तो बनना शुरू हो गई। गैलेक्सी कैसे बनी, मैं कैसे बनी थी, मैंने तो आसपास के लोगों को अट्रैक्ट किया था, बट हाउ डिड आई फॉर्म? सो ये था, एक बड़ा सा बादल होता है जिसमें जो हाइड्रोजन गैस होती है वो एक साथ आ जाती है। बहुत सारे हाइड्रोजन के पार्टिकल्स मिलके एक बड़ा सा क्लाउड फॉर्म कर लेते हैं, और उस क्लाउड को हम बोलते हैं नेबुला। उस क्लाउड को हम क्या बोलते हैं? नेबुला, NEBULA, नेबुला बोलते हैं उस क्लाउड को हम। फिर क्या होता है, धीरे धीरे एनर्जी, जब ये हाइड्रोजन एटम्स एक साथ हैं, फिर ये जो हाइड्रोजन के पार्टिकल्स इसके अंदर हैं ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, जैसे हमने पहले लिखा था कि बार बार ये हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। फिर ये कुछ लंप्स ऑफ गैस बन जाते हैं। लंप्स का मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना ब्लड क्लॉट हो गया। ब्लड क्लॉट में क्या होता है, आपका ब्लड एक साथ आ जाता है, बहुत सारा ब्लड एक साथ इकट्ठा हो जाता है, उसको हम बोलते हैं लंप। कोई भी चीज में आप देखो, आप इवन इफ यू आर, आप बेसन भी घोलते हो, इफ यू आर मिक्सिंग दी ग्राम फ्लोर, उसको भी जब आप बहुत ज्यादा एकदम से ठंडे पानी में डाल देते हो तो उसके लम्प्स बन जाते हैं। इफ यू आर डूइंग बेकिंग वगैरह करते हो तो आपको पता होगा व्हाट इज लम्प्स। तो लम्प्स ऑफ गैसेस बन गई थी, और ये जो लम्प्स थी, जो छोटे छोटे से लम्प थे, ये बहुत डेंस थे। अभी डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी का मतलब होता है, डेंसिटी इज अ सॉलिड, लिक्विड और गैस के बेसिस में देखते हैं। जो एटम्स होते हैं वो कितने क्लोजली पास चिपके हुए होते हैं उसको हम डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी का मतलब, अगर आप एक सॉलिड लोगे तो सॉलिड में जो एटम्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में थोड़े से दूर होते हैं, और गैस में बहुत ज्यादा दूर होते हैं। तो इसीलिए गैस, जब आप देखते हैं, हम एक इतने से सिलेंडर में 15 किलो गैस आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि उसको कंप्रेस कर दिया जाता है। CNG को क्या बोला जाता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो उसका मतलब क्या है, जो गैस है उसमें बहुत स्पेस होती है दो एटम्स के बीच में। बट ये जो नेबुला में ही कुछ हमारे ऐसे गैसेस के लम्प्स बन गए जो कि बहुत ज्यादा डेंस थे नेचर में। जो कैसे थे? दे वर वेरी डेंस इन नेचर, और फिर ये जो डेंस लम्प्स थे इट टर्न इनटू स्टार्स। ये क्या बन गए? ये फिर स्टार्स बन गए। 5 से 6 बिलियन ईयर्स अगो पहले हमारे स्टार की फॉर्मेशन हुई थी, ये लम्प्स स्टार बन गए, एंड इसकी वजह से हमारे गैलेक्सीज में बहुत सारे स्टार्स आ गए। अभी स्टार का शेप क्या होता है? स्टार इज ऑल्सो शेप, राउंड शेप में होता है, आपका स्फेयर की शेप में होता है। जिस तरीके से आपका सन है उसी शेप का आपके सारे स्टार्स होते हैं, बिकॉज यू शुड नो दैट सन इज ऑल्सो अ स्टार।
बट अगर वो आपका टिपिकल स्टार होता तो सन भी वैसे ही दिखता, बट ऐसा नहीं है। जो स्टार की शेप होती है इट इज ऑल्सो राउंड। स्टार इज अ नेम ऑफ शेप एज वेल एज सेलेस्टियल बॉडी, बट सेलेस्टियल जो बॉडी है वो एक्चुअली में स्फेयर इन शेप होती है, नॉट लाइक दिस, इस तरह की शेप नहीं होती है स्टार की एक्चुअली। सो लोकलाइज क्लम्प्स बन जाते हैं गैस के। ये जो क्लम्प्स हैं ये इवन डेंसर होते हैं और धीरे धीरे करके और ज़्यादा डेंस होते रहते हैं, और इसकी वजह से स्टार्स का फॉर्मेशन हो जाता है अराउंड 5 to 6 बिलियन ईयर्स अब। अभी इसमें एक बॉक्स दिया है विच टॉक्स अबाउट लाइट ईयर्स अगो। सो लाइट ईयर इज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस एंड नॉट ऑफ टाइम। सबसे पहली चीज जो आपको नोट करनी है वो ये है कि जो लाइट ईयर होता है वो डिस्टेंस का नहीं, टाइम का मेजरमेंट, वो डिस्टेंस का मेजरमेंट है, टाइम का मेजरमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 लाइट ईयर लगा आगरा से दिल्ली जाने में, नहीं, ऐसा नहीं होता है। लाइट ईयर इज ह्यूज, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। तो 1 लाइट ईयर का मतलब डिस्टेंस होगा, जो डिस्टेंस आपको 200 किलोमीटर है उसको हम लाइट ईयर्स बोलते हैं, टाइम की बात नहीं होती है यहाँ पे। लाइट ट्रैवल्स, जो लाइट की स्पीड पे ट्रैवल करती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड पे लाइट ट्रैवल करती है, विच मीन्स 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में ट्रैवल कर सकती है लाइट। सबसे फास्टेस्ट स्पीड जो है वही लाइट की होती है। इसको अगर हम कंसिडर करें तो जो लाइट है वो एक साल में 1 लाइट ईयर चलती है। अभी समझ में आया? तो अभी लाइट ईयर 1 लाइट ईयर इज नॉट इक्वल्स टू 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू एक साल में कितना चल जाए, तो दैट इज नोन एज 1 लाइट ईयर्स। आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन। तो लाइट ईयर मतलब डिस्टेंस है, एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड लाइट ट्रैवल करती है, और जब हम पूरे साल में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इंटू जो टोटल नंबर ऑफ सेकेंड्स जो पूरे साल में होते हैं उसको इंटू करेंगे, देन दैट इज योर 1 लाइट ईयर, जो हम एक साल का निकालते हैं। और द मीन डिस्टेंस बिटवीन जो सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस है इट इज ह्यूज नंबर, और लाइट ईयर्स के टर्म्स में ये आपका है 8311 मिनट्स। इतना ज़्यादा डिस्टेंस है हमारा बिटवीन अर्थ एंड मून। अब मिनट्स क्यों लिखा है मैम? ये तो डिस्टेंस का था, तो मिनट्स के हिसाब से, क्योंकि अभी पूरा साल 1 लाइट ईयर नहीं लग रहा है, कम लग रहा है, दैट इज वाई इसमें मिनट्स का बारे में लिखा हुआ है। लाइट ईयर्स में इट इज 8311 minutes. So I hope this is clear. Formation of stars के केस में हमने सबसे पहले मैटर की बात करी, एनर्जी की बात करी, फिर हमने, क्योंकि मैटर और एनर्जी अलग अलग था, तो जो कुछ मैटर और एनर्जी कहीं पे डेंस था वहां पे ग्रेविटेशनल पुल हुआ। उस ग्रेविटेशनल पुल के कारण देयर वाज अ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण धीरे धीरे करके मैटर एनर्जी एक्सपैंड होने लगा और गैलेक्सीज बन गई। जो गैलेक्सीज होती हैं बहुत वास्ट होती हैं, अराउंड 80,000 से 1,50,000 लाइट ईयर्स का इनका डिस्टेंस होता है। इनके बीच में 2 डायमीटर का डिस्टेंस होता है, तो आप देख लो कितना वास्ट हो गया। अभी हमने लाइट ईयर के बारे में पढ़ा था। गैलेक्सीज कैसे बनती हैं? एक क्लाउड होता है बड़ा सा जिसमें हाइड्रोजन गैस होती है, जिसको हम नेबुला बोलते हैं। इसी के अंदर कुछ कुछ गैस पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक साथ आ जाते हैं और क्लम्प्स बन जाते हैं। डेंसिटी के, हाई डेंसिटी के क्लम्प्स बन जाते हैं। ये जो क्लम्प्स होते हैं लेटर दे टर्न इनटू स्टार्स, इन्हीं को हम स्टार्स बोलते हैं। एंड these stars were formed around 5 to 6 billion years ago. Then we talked about the light year. Light year is a measure of distance and not of time. And एक सेकेंड में लाइट कैन ट्रैवल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 1 ईयर में जितना लाइट ट्रैवल करती है उसको हम 1 लाइट ईयर बोलते हैं। अर्थ और मून के बीच, अर्थ और सन के बीच में 88,311 मिनट्स का डिस्टेंस है। इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर वी आर टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स की बात कर लिए। अभी हम प्लैनेट्स की बात करेंगे कि प्लैनेट्स कैसे फॉर्म होते हैं। जब अगर हम पहले हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, फिर हम स्टार्स की बात कर रहे हैं, फिर अब हम प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं, तो इतना ये ऑब्वियस हो गया कि ये एक सीक्वेंस है। सबसे पहले यूनिवर्स बना है, फिर स्टार्स बने हैं, फिर प्लैनेट्स बने हैं, फिर मून बना है। इस तरह से बाकी की सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में हम देखेंगे। सो इन दी बाय टॉकिंग अबाउट दी प्लैनेट्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो प्लैनेट्स जो होते हैं वो कुछ एक पर्टिकुलर 3 स्टेजेस होती हैं। 1 to 3 स्टेजेस के बारे में हम बात करेंगे। इन 3 स्टेजेस में मिलके प्लैनेट की 3 स्टेजेस के बाद प्लैनेट की फॉर्मेशन होती है। अभी हमने प्रीवियसली वी वर टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ
स्टार्स क्या थे? जो क्लाउड था, एक नेबुला क्लाउड के अंदर कुछ जो गैसेस के लम्प्स होते हैं उनको हम बोल देते हैं स्टार्स। ये कुछ ऐसा दिख रहा था स्टार्स, एक क्लाउड था नेबुला और उसके अंदर जो गैसेस के लम्प्स थे ये स्टार्स थे। इनको अगर हम इसमें फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, ये जो गैसेस लम्प्स ऑफ गैसेस होते हैं ये इनके आसपास जो अंदर एक कोर बन जाता है। कोर का मतलब क्या होता है? एक बड़ा सा गैस, बहुत सारी गैस इकट्ठी हो गई है, उसके अंदर कुछ जो डेंस पार्टिकल्स होते हैं वो अंदर की तरफ आ जाते हैं, जिसकी वजह से गैस अंदर की तरफ एक कोर बन जाता है, हार्ड कोर कहते हैं जिसको हम। और ये जो कोर है इसके आसपास डस्ट पार्टिकल्स और अदर गैसेस जो होती हैं वो आसपास घूमने लग जाती हैं। एक डिस्क, रोटेटिंग डिस्क हो जाती है। रोटेटिंग डिस्क मतलब ये जो पोर्शन है दिस इज रोटेटिंग, घूम रहा है ये इस कोर के आसपास, इसको हम बोलते हैं रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट। अभी इसी का एक जूमर वर्जन हो जाता है स्टेज नंबर 2। स्टेज 2 में क्या होता है, ये जो हमारी ये कोर था, कोर के आसपास डस्ट थी, डस्ट और गैसेस थी। अब ये डस्ट और गैसेस क्या होती हैं? ये डस्ट और गैसेस में जो कुछ गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो ग्रेविटेशनल क्लम्प्स ऑफ गैस था। ये कुछ, मैंने उसका एक जूमर वर्जन ऐसा दिखेगा, ये अंदर एक कोर ऑफ गैसेस और उसके आसपास डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस की एक लेयर जो उसके आसपास डिस्क जो रोटेट करती है। फिर क्या होगा, ये जो डस्ट, इसकी जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, ये एक साथ क्लब हो जाएंगे, एक साथ मिल जाएंगे और ये कुछ छोटे छोटे से क्या फॉर्म कर लेंगे, प्लैनेटेसिमल्स। क्या बना लेंगे? ये प्लैनेटेसिमल्स। ये प्लैनेट्स नहीं हैं, ये अभी प्लैनेटेसिमल्स ही हैं, बहुत छोटे छोटे से क्लम्प्स हैं गैसेस के। उसके अंदर ही पहला क्लम्प बना जिससे स्टार बना, अब दूसरा क्लम्प बन रहा है जिससे प्लैनेटेसिमल्स बन रहे हैं। ये भी मटीरियल्स, मेटल, ये जो डस्ट पार्टिकल्स और ये सब है इसी से बने होते हैं। और ये जो अभी आप ध्यान रखना, इसके अंदर कोर में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ये हाइड्रोजन से ही तो लेयर से बना था। स्टार्स में सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन होती है। तो हाइड्रोजन के मटेरियल से बनता है। जो लाइटर वाले होते हैं वो तो अंदर आ जाते हैं, जो हैवी वाले होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। क्या हुआ, इनके कोहेजन मतलब होता है जो डस्ट, कोहेजन मतलब हो गया, आप एडहेसिव लगाते हो ना, जो ये फेविकॉल वगैरह होती है इनको एडहेसिव बोलते हैं। कोहेजन मतलब भी सीधी बात होती है, जब जो मटेरियल्स हैं वो आपस में चिपक जाए, मिल जाए, उसको हम कोहेजन बोलते हैं। तो कोहेजन के प्रोसेस से ये जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स थे ये मिल जाते हैं और ये फॉर्म करते हैं प्लैनेटेसिमल्स। क्या फॉर्म करते हैं? प्लैनेटेसिमल्स। अब इन स्टेज 3 में क्या होता है, ये जो छोटे छोटे प्लैनेटेसिमल्स हैं ये आपस में भी, ये भी आपस में मिल जाते हैं ग्रेविटेशनल। इनमें से कोई एक होगा जिसमें ग्रेविटेशन पुल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, वो क्या करेगा, वो आसपास की जितने भी प्लैनेटेसिमल्स हैं उसको इकट्ठा कर लेगा और फिर एक पूरा फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट बनता है, जिसको जो छोटे छोटे प्लैनेटेसिमल्स मिलके एक बड़ा प्लैनेट की फॉर्मेशन करते हैं, विच इज नोन एज अ प्लैनेट। तीनों स्टेजेस समझ में आई। इन दी फर्स्ट स्टेज हमने बात करी कि किस तरह से जो नेबुला क्लाउड था, जो हाइड्रोजन का बना हुआ था, उसमें कुछ क्लम्प्स बन जाते हैं गैसेस के, जिसको हम स्टार्स बोलते हैं। धीरे धीरे इन स्टार्स के आसपास जो डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस होती हैं वो एक रोटेटिंग सी डिस्क फॉर्म कर लेती है। रोटेटिंग डिस्क मतलब जो घूमती रहती है डिस्क शेप में, डिस्क शेप इज डिस्क शेप, तो डिस्क शेप में फॉर्म हो जाती है। फिर ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं और ये जो गैसेस हैं इनमें भी जो एनर्जी होती है, ग्रेविटेशन होता है, उसकी वजह से ये आसपास के डस्ट पार्टिकल को अपनी तरफ पुल करते हैं और बहुत छोटे छोटे से प्लैनेटेसिमल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? राउंडेड प्लैनेटेसिमल्स। फिर इन दी स्टेज 3 ये जो प्लैनेटेसिमल्स हैं ये भी आपस में एक साथ आ जाते हैं ग्रेविटेशन के कारण और ये एक बड़ा प्लैनेट फॉर्म करते हैं। This was about the formation of planets. Today we talked about the star formation and planet formation. We will continue in the next class about our solar system and the formation of moon. Thank you and have a nice day. If you like the video, please hit the like button, subscribe to the channel, and please do leave comments in the comment section. It can be positive, negative, anyway. You can also suggest some improvements if you want, but please respond. Thank you.